नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। कथं सन्ति छात्राः? सर्वे कुशलाः? अमने अમને न ન ओळख्या? ઓળખ્યા? અહમ ચિંટુ. अहम चिंकी. અમે કેમ આવ્યા છીએ એમ? અમારે તમને સરસ મજાના ગીતો સંભળાવવા છે. ચલતું ચલતું ચિંટુ, અહમ ગાયામી. ન ન, અહમ ગાયામી. અરે ન ન, અહમ ગાયામી. સદા સર્વદા ભવાન એવ ગાયતી, અદ્ય અહમ ગાયામી. ભવતી અનુજા નાની છે ને, ભવતી એવ ગાયતું. ચલતું ચલતું ત્વરિતમ ગાયતું. એકમ એકમ આગચ્છ, દ્વે દ્વે સ્વાગતમ, ત્રીણિ ત્રીણિ ઉપવિશ, ચત્વારી ચત્વારી કુશલમ કિમ, પંચ પંચ કહ વિશેષઃ, ષટ્ ષટ્ કૃપયા વદ, સપ્ત સપ્ત જલમ પિબ, અષ્ટ અષ્ટ પુનર્મિલામ, નવ નવ નમસ્તે, દશ દશ નમો નમઃ. સુંદરમ ચિંકી. લતુ ચિંટુ, અધુના ભવાન ગાયતુ. એકમ 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 મમ હૃદયમ એકમ, દ્વે 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 મમ નેત્રે દ્વે, ત્રીણિ 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 બિલ્વપત્રાણિ ત્રીણિ, ચત્વારી 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 બ્રહ્મમુખાની ચત્વારી, પંચ 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 પાંડવા સંતિ પંચ, ષટ્ 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 કાર્તિકે મુખાની ષટ્, સપ્ત 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 વાસરા સંતિ સપ્ત, અષ્ટ 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 દુર્ગા ભુજા અષ્ટ, નવ 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 ગ્રહા સંતિ નવ, દશ 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 રાવણસ્ય મુખાની દશ. ઉત્તમમ ચિંટુ, અતિસુંદરમ ગીતમ. ચલતુ વયમ ગચ્છામઃ. કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં ને? ચિંટુ અને ચિંકી કેવા લાગ્યા? મજા પડી ને તમને એમની પાસે? અને ગીતો સાંભળવાની પણ કેવી મજા પડી? તો ચાલો આજે આપણે એકમ 6 સંખ્યા વિશે ભણીએ. હવે આપણે સરસ મજાનો એનિમેટેડ વિડીયો નિહાળીએ. भो नीलेश किं करोति भवान्? क्रिकेट् दलस्य धावनाङ्कफलकं पश्यामि। भाविकस्य प्रथम क्रीडायां कति धावनाङ्काः? 140, द्वितीयक्रीडायां 34, तृतीयक्रीडायां 28, चतुर्थक्रीडायां 50, पञ्चमक्रीडायां 39। अहो नीलेश, नीरवस्य का स्थितिः? सः प्रथमक्रीडायां 33 धावनाङ्कं करोति। द्वितीयक्रीडायां 21 धावनाङ्काः। तर्हि तस्य तृतीयक्रीडायां का स्थितिः? 40। उत्तमम्। चतुर्थक्रीडायां 37। अन्तिमक्रीडायां नीरवः कति धावनाङ्कन् करोति? सम्यक् अस्ति, 42। पश्य, शालिनस्य प्रथमक्रीडायां 36 धावनाङ्काः, द्वितीयक्रीडायां तस्य 37। तृतीयक्रीडायाम् अधिकं नास्ति, केवलं 16। सत्यं, चतुर्थक्रीडायाम् अपि 26। तर्हि पञ्चमक्रीडायां सः 48 धावनाङ्कान् प्राप्तं करोति।
વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો જોવાની મજા પડી ને? સરસ. તો ચાલો હવે આપણે આ એકમમાં આવતા કેટલાક અપરિચિત શબ્દોનો અર્થ જાણીએ. ક્રિકેટ દલમ, ક્રિકેટ દલમ. ક્રીડકઃ, ક્રીડકઃ. धावनांक फलकम, धावनांक फलकम. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સ્કોર બોર્ડ ભરવાની એક સુંદર રમત રમવાની છે, પરંતુ આ સ્કોર બોર્ડ ભરતા પહેલાં આપણને 1 થી 50 સુધીની સંસ્કૃત સંખ્યા આપણને આવડવી જોઈએ. તો ચાલો આપણે 1 થી 50 સુધીની સંસ્કૃત સંખ્યા શુદ્ધ ઉચ્ચારણ સાથે સમજીએ અને શીખીએ. एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पञ्चदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पञ्चविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पञ्चत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, 50. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 1 થી 50 સુધીની સંસ્કૃત સંખ્યાનું આપણને જ્ઞાન મળી ગયું છે. તો ચાલો હવે આપણે સ્કોરબોર્ડની પ્રવૃત્તિ કરીએ. તો ચાલો આપણે આ સ્કોરબોર્ડનો એનિમેટેડ વિડીયો જોઈએ. અહીં 5 ખેલાડીઓએ 5 રમતમાં કેટલા રન કર્યા તેની માહિતી આપવામાં આવેલી છે. 1. નયનઃ. નયનના પહેલી રમતમાં ષટ્ત્રિંશત, નયનના બીજી રમતમાં 50, નયનના ત્રીજી રમતમાં ચતુશ્ચત્વારિંશત, નયનના ચોથી રમતમાં 29, નયનના પાંચમી રમતમાં 9ચત્વારિંશત. 2. વિવેકઃ. વિવેકના પહેલી રમતમાં 20, વિવેકના બીજી રમતમાં 31, વિવેકના ત્રીજી રમતમાં 11, વિવેકના ચોથી રમતમાં 35, વિવેકના પાંચમી રમતમાં 18. 3. રાકેશઃ. રાકેશના પહેલી રમતમાં 50, રાકેશના બીજી રમતમાં સપ્તચત્વારિંશત, રાકેશના ત્રીજી રમતમાં 8ચત્વારિંશત, રાકેશના ચોથી રમતમાં 50, રાકેશના પાંચમી રમતમાં 9ચત્વારિંશત. 4. જયેશઃ. જયેશના પહેલી રમતમાં 10, જયેશના બીજી રમતમાં 11, જયેશના ત્રીજી રમતમાં 17, જયેશના ચોથી રમતમાં 12, જયેશના પાંચમી રમતમાં 10. 5. જતીનઃ. જતીનના પહેલી રમતમાં 24, જતીનના બીજી રમતમાં 29, જતીનના ત્રીજી રમતમાં 25, જતીનના ચોથી રમતમાં 31, જતીનના પાંચમી રમતમાં 63. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એકમનું સ્વાધ્યાય તમે તમારી નોટબુકમાં લખી રાખજો. આવતા અંકમાં મળીશું. નમો નમઃ. नमस्ते बच्चों, होम लर्निंग में आपका स्वागत है. पिछले एपिसोड में हमने इकाई 7 ढूंढते रह जाओगे में पहेलियाँ देखी.
और उनकी समझ प्राप्त की। दोस्तों, आपको पता है पहेलियाँ मज़ेदार तो होती ही हैं और हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं। आज भी मैं आपको एक पहेली पूछना चाहती हूँ, आप उसका उत्तर मुझे बताएं। है तो वो रात की रानी, आँखों से उसके टपके पानी। है तो वो रात की रानी, आँखों से उसके टपके पानी। क्या है उसका नाम, बताओ तो जाने। बताइए। हाँ, मोमबत्ती। बहुत बढ़िया, मोमबत्ती उसका उत्तर है। आज हम इकाई 7 ढूंढते रह जाओगे कि अभ्यास और स्वाध्याय की प्रश्नोत्तरी देखेंगे। आप अपनी हिंदी की किताब ले लीजिए और वहाँ पर इकाई 7 निकालिए। हम सब देखेंगे कि कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर आपको सोचने हैं और उसके उत्तर आपको देने हैं। अभ्यास में हम प्रश्न 1 देखेंगे, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर हम वाक्य देखते हैं, सेजल ने काम कर दिया। दूसरा वाक्य है, कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। और तीसरा वाक्य, विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी। बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कर शब्द का प्रयोग किया है तीनों वाक्यों में, लेकिन इसका अर्थ क्या है ये हम जानेंगे। पहले वाक्य में सेजल ने काम कर दिया है, यानी यहाँ पर क्रिया की बात की गई है। अपना काम सेजल ने पूरा कर दिया है, इसीलिए पूरा करने की क्रिया। दूसरे वाक्य में देखते हैं, कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। बच्चों, कर ये शब्द आपने शायद ना सुना हो, लेकिन टैक्स शब्द आपने सुना होगा, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, तो ये कर यानी टैक्स। तीसरा वाक्य है, विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी। यहाँ पर कर का क्या मतलब हो सकता है? हाँ, हाथ। यहाँ पर हाथ की बात की गई। हाथ को हिंदी में और शब्द है कर। तो आपने देखा कि तीनों शब्द एक ही हैं, लेकिन उसके अर्थ तीनों वाक्य में अलग अलग हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाइए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और हमें उसका वाक्य बनाना है। जैसे कि बस, अब हम इसका क्या वाक्य प्रयोग करेंगे ये आपको सोचना है। एक वाक्य है, मैं बस में बैठकर अपने मामा के घर गया। और दूसरा वाक्य, मुझे बस 2 ही लड्डू चाहिए। यहाँ पर पहले वाक्य में बस की बात की गई है यानी वाहन की, और दूसरे वाक्य में बस यानी मुझे इतना ही काम करना है। हम जब ऐसे कहते कि बस मुझे यही करना है, बस अब मैं और कुछ नहीं करना चाहती, तो तब आप ये बस वहाँ पर भी उपयोग कर सकते हैं। आगे का वाक्य देखते हैं, सोना। इसके क्या वाक्य बन सकते हैं? व्यापारी के पास सोने के सिक्के थे। सोना, आपको पता है बच्चों, ये धातु की बात की गई है। सोना धातु। और एक सोना भी है, नींद में सो जाना। जैसे कि मैंने वाक्य बनाया है, मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। जब हमें नींद आती है, ये क्रिया की बात है। और पहले वाक्य में सोना यानी धातु की बात की गई है। अब आपको समझ में आया, यहाँ पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। आगे देखते हैं, आम। मैंने एक वाक्य बनाया है, मुझे आम का फल बहुत पसंद है। और एक अर्थ भी है आम का, जिसका मैंने वाक्य बनाया है, आजकल हर किसी के घर में मोबाइल होना आम बात है। आपने देखा है कि सभी के घर में मोबाइल होता है, तो यह आम बात है। आम यानी सामान्य बात हो गई है। आम के भी 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक और है उत्तर। एक आप दिशा के रूप में जानते हैं, जैसे मैंने यहाँ वाक्य बनाया है, हमारे गांव में शिवजी का मंदिर उत्तर दिशा में है। उत्तर यानी दिशा। और दूसरा उत्तर, जिसका मैं आपको हमेशा प्रश्न पूछती हूँ और आपसे उत्तर लेती हूँ, जैसे कि आपको परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो उत्तर के भी 2 अर्थ हुए। आगे देखते हैं, पूरी। मुझे आलू की सब्जी पूरी के साथ खाना बहुत प्रिय है। ये वाक्य भी बन सकता है। यहाँ पर खाने की चीज़ की बात की गई है और यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई ने पूरी जिंदगी विज्ञान को समर्पित कर दी। यहाँ पूरी एक क्रिया के रूप में बताया गया है। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। पहली पूर्ण करना है। जैसे ये जो वाक्य दिए गए हैं वो आपको पढ़ना है
और उसके उत्तर सोचने हैं। भारत का नक्शा भी यहाँ दिया गया है। अब देखिए कि यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहली पंक्ति में क्या उत्तर आएगा आपको बताना है कि यहाँ पर कितने अक्षर दिए गए हैं, 3, है ना। और फिर दूसरी पंक्ति में दुनिया में है, क्या आएगा इस रिक्त स्थान में, सबसे न्यारा। आगे देखिए बीच कटे तो अगर आप बीच का वर्ण काटेंगे तो वहाँ बन जाएगा भात। और आगे की पंक्ति देखते हैं, अंत कटे तो शब्द में देखिए अंत का वर्ण अगर आप काटेंगे तो वहाँ बन जाएगा भार। तो यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति अब आपको करना है। 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा, बीच कटे तो बात हो जाऊं, अंत कटे तो भार हो जाऊं। आगे देखते हैं सूरज। यहाँ पर भी आपको सूरज का चित्र दिया गया है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब आपको सोचना है कि यहाँ चित्र में और यहाँ जो शब्द दिया है सूरज, वो कितने अक्षर का है, 3 अक्षर। 3 अक्षर का नाम मेरा, और वह क्या देता है सूरज, उजाला देना काम मेरा। प्रथम कटे तो, अब आप शब्द में देखिए कि प्रथम शब्द यदि आप काट देंगे तो वहाँ बन जाएगा रज। और अंत कटे तो अंत का वर्ण अगर आप काटेंगे तो वहाँ बन जाएगा सुर। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति आप ऐसे करेंगे, 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, प्रथम कटे तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो सुर बन जाऊं। तो इसमें भी अर्थपूर्ण शब्द हम बना सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमल। तो यहाँ पर अगर हमें पहेली बनानी है तो कैसे बनाएंगे, ये 3 वर्ण का शब्द है। तो आप कह सकते हैं 3 अक्षर का नाम मेरा, जल में है घर मेरा, पानी में रहता कमल। यहाँ इसकी बात की गई है। तो इसका अंतिम वर्ण क्या है, ल। तो अगर आप इसको काट देंगे तो क्या बनेगा, कम। कम यानी बहुत थोड़ा। तो यहाँ पर आप ये बताइए कि यहाँ मध्य वर्ण कौन सा है, म। तो अब इसे काटेंगे तो क्या बनेगा, कल। हाँ, आने वाला कल, बीता हुआ कल। बहुत खूब। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें पहेली बनानी है। आप देख सकते हैं शब्द समय। समय निरंतर चलता रहता है। समय क्या करता है, हमें समय बताता है और वह जैसे भागता ही रहता है, ऐसा हमें लगता है। तो हम यहाँ पर कैसी पहेली बना सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कितने वर्ण हैं, 3। तो 3 अक्षर का नाम मेरा, निरंतर चलना काम मेरा। अब यहाँ पर आप अंतिम वर्ण, यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है, य। अब इसे आप काट देंगे तो क्या बनेगा, सम। सम यानी समान। और यदि हम इसका प्रथम वर्ण काट देंगे तो बनेगा मय। तो यह पहेली हम ऐसे बना सकते हैं कि अंत कटे तो सम हो जाऊं, पहला कटे तो मय हो जाऊं। मय यानी मदिरा। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और हमें उस पर पहेली बनानी है। तो हमें सोचना है कि समय के बारे में हम क्या जानते हैं और उसको हम कैसे बनाएं। जैसे हमने प्रभात शब्द की पहेली बनाई, प्रथम शब्द बीच का शब्द काटकर, उसी तरह हमने समय की भी पहेली बनाई। आगे का प्रश्न देखते हैं, पहेली को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर शब्द दिया गया है काजल और पहेली भी दी गई है, लेकिन हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर देखिए, आपको सभी पंक्तियाँ पढ़नी है। अब यहाँ पर हम शब्द देखेंगे और इस पहेली को देखेंगे तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे शब्दों को रखना है जिससे हमें उसका उत्तर मिले काजल। तो आप सोचिए कि इसके कितने अक्षर हैं, 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3। यहाँ पर प्रथम पंक्ति में आएगा 3। काजल हम कहाँ लगाते हैं, हाँ, आँखों में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आँखों में है बसाते मुझे। अब आगे देखते हैं, अंत कटे तो आप इस शब्द का अंतिम वर्ण यदि निकाल देंगे तो क्या बनेगा, आप बताइए अंतिम वर्ण कौन सा है, ल।
अगर इसे निकालेंगे तो यहाँ पर शब्द बनेगा काज। और बीच कटे तो यहाँ पर देखो आपके बीच का वर्ण जो है उसे अगर आप निकाल देंगे तो क्या बनेगा? काल। तो यहाँ पर हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है और हमारी पहेली भी बन गई है जिसका उत्तर निकलता है काज। तो यहाँ पर हम सब देखते हैं कि कौन सी पहेली बनी है। आप सब पढ़िए। 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आँखों में है बसाते मुझे, अंत कटे तो काज कहाऊं, बीच कटे तो काल बन जाऊं। बहुत ही अच्छी पहेली हमने बना ली। और बच्चों, यदि आप इन रिक्त स्थानों में इन शब्दों के अलावा भी अगर आप सोच रहे हैं कि कोई और शब्द रखें तो आप सोचकर यदि यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप जो चाहे वो शब्द यहाँ पर रख सकते हैं और नई पहेली बना सकते हैं। आगे का प्रश्न है, बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर वाक्य फिर से लिखना है। एक वचन में वाक्य दिए गए हैं और वो हमें बहुवचन में वाक्य बनाकर लिखने हैं। उदाहरण के तौर पर एक वाक्य भी दिया गया है, जैसे कि लड़की खेल रही है। तो लड़की, इसका बहुवचन का शब्द क्या होगा? लड़कियाँ। तो अगर इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर बनेगा लड़कियाँ खेल रही हैं। अब इस प्रकार हमें एक वचन के वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, लड़का पानी पीता है। लड़का, इसका बहुवचन का शब्द क्या है? हाँ, लड़के। तो यहाँ पर हम करेंगे लड़के पानी पीते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों कि यदि एक वचन का वाक्य हम बहुवचन के वाक्य से करें तो शब्द के साथ साथ वाक्य में भी परिवर्तन आता है। जैसे पानी पीता है, पानी पीते हैं। आगे देखते हैं, किताब सुंदर है। यहाँ पर किताब की बात की गई है। यह एक वचन का शब्द है, एक ही किताब है, इसीलिए किताब सुंदर है। तो इसका बहुवचन क्या करेंगे? किताबें। हाँ, किताबें सुंदर है। तो आप इस प्रकार एक वचन में से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वह जाता है। वह जाता है, तो इसका बहुवचन में हो जाएगा वे। वे जाते हैं। यदि एक वचन में है तो वह जाता है, और बहुवचन में यदि ये वाक्य परिवर्तित होगा तो बन जाएगा वे जाते हैं। आगे देखते हैं, फूल खिला है। बाग में फूल खिला है। एक फूल है तो फूल खिला है, लेकिन ज़्यादा फूल है तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर फूल खिले हैं। एक वचन में फूल खिला है और यदि ज़्यादा फूल है तो फूल खिले हैं। तो वाक्य में जो परिवर्तन हुआ है आप सब देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है? गृह कार्य में ये पहेलियाँ बनानी हैं। आप देखिए, आप सबको हिंदी की कॉपी में ये पहेलियाँ बनानी हैं। आकाश, जीवन, दीपक, आप सब ने लिख लिया होगा। आप सबको अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न हिंदी की कॉपी में लिखने हैं। आशा रखती हूँ कि आप सबको पहेलियाँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।